Hello everyone. So here I'm again with another set of questions, and we are doing here international finance or international financial markets will be our topic. This is again from your unit 4, and I hope you are covering your all these sessions of various questions along with me. If you have any doubt, any queries, आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शंस एंड वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल अगर आपका कोई भी डाउट है तो. So start करते हैं with the very first questions for today. Which of the following is not the major objective of IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो लेट्स रीड. Promoting cooperation among countries, yes it is. Second, giving loans to the countries for the purpose of economic development, ये IMF का ये पर्पज नहीं है. Promoting stability in the exchange rate, ये भी है. Promoting free mobility of capital across countries, ये भी है. So here B is the option. This is not the objective. Major objective नहीं है ये IMF का. All right. The next question. ADRs and GDRs जो होते हैं, ADR American Depository Receipts and GDR is Global Depository Receipts. तो अगर आपको इनकी फुल फॉर्म नहीं मालूम है, अभी मैंने आपको बताया, you can note it down. जो ये है, these are excellent means of investment to invest in India. इंडिया में कहाँ पर इन्वेस्ट करने के ये परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं? NRIs द्वारा, बिल्कुल. Foreign nationals, yes, both are the same thing. So both A and B here correct. Both A and B can invest in ADRs and GDRs. Next, select the correct code for the following statements. We will read these statements and then find out. Statement 1, जो गोल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं GDR, ये एक ऐसी बैंक रिसीट है देयर कैन बी इशूड इन मोर देन वन कंट्री. दैट्स ट्रू. GDR जो है वैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जैसी ही होती है, ये भी बिल्कुल ट्रू है. GDRs आर कोल्ड EDRs व्हेन प्राइवेट मार्केट आर अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन यूरोज. ओके, इसको GDR को कई बार हम EDR बोल देते हैं बिकॉज यहाँ पर यूरो डिपॉजिटरी रिसीट्स आ जाती है. करेक्ट. सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1, 2, 3 आर करेक्ट. वी विल गो विद ऑप्शन A. ऑल राइट, मूविंग अहेड. The full details for the issue of ADR by a company must be furnished within 30 days के अंदर आपको सारी डिटेल्स देनी है from the date of its closure to what? Closure to Reserve Bank of India, RBI. ऑलराइट, आपको RBI के क्लोजर डेट से पहले पहले ADR से रिलेटेड सारी डिटेल सबमिट करवानी होती है. Then students, we move to the next topic. This is your international arbitrage and it is very very important. UGC नेट में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आपको मेरे साथ ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा बिकॉज हम अपना कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी लूप होल छोड़ना नहीं चाहते इस नेट एग्जाम में, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेज से रिलेटेड है एंड लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. इन कॉन्ट्रास्ट टू द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो CAPM होता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है? इट हैज़ फ्यूअर रिस्ट्रिक्टिव एजम्पशंस. अगर हम आर्बिट्रेज थ्योरी देखें तो CAPM से इसमें कुछ थोड़ी कम एजम्पशन हम लेकर चलते हैं. देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्टिव एजम्पशन. सो ऑप्शन A इज करेक्ट हियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है इज एन इक्विलिब्रियम मॉडल, तो इसको किसने बनाया है? दिस इज डेवलप्ड बाय स्टीफन रोस एंड रिचर्ड रोल. याद रहेगा, स्टीफन रोस एंड रिचर्ड रोल. The next is arbitrage opportunity means you can earn a positive return with zero initial investment and zero risk. Arbitrage opportunity का मतलब यही है, बिना initial investment और बिना risk के आप earn कर सकते हैं. Next, according to the APT again, this is arbitrage theory, arbitrage price theory. The value of the firm specific factor is expected to be on average कैसा होना चाहिए? 0. यहाँ पर factors जो है value of the firm 0 हो. Then next, which of the following is an assumption of APT? APT याद रहेगा, arbitrage pricing theory. APT की इनमें से कौन सी assumption है? So assets return, yes. Diversification, yes. Arbitrage, yes. So all of the above. All of the above are the assumptions of APT. Next question is, concessions mainly multinational in character come under the principle of, जो concessions होते हैं this come under the principle of reciprocity.
देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो होती है, दैट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. लेट्स सी. गोल्ड हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स इंटरनेशनल लिक्विडिटी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं. गोल्ड हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स. फैमिलीज के नहीं आते. फॉरेक्स रिजर्व्स बाय दीज कमर्शियल बैंक्स बिल्कुल आती है. मिनरल वेल्थ नो. एसडीआर बिल्कुल आता है. एसडीआर क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है अब एसडीआर. एसडीआर की जिन भी स्टूडेंट्स को फुल फॉर्म पता है तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल चेक कि हाउ मेनी ऑफ यू करेक्टली नो अबाउट एसडीआर्स और कितने लोग मेरे सेशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. तो एसडीआर की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए. So this is also a part of international liquidity. Then borrowing facilities, no, these are not included. NRIs and FDRs, no. Credit facilities available under swap, that's also true. So we will go with 1, 3, 5 and 8. These are clearly mentioned in this code C. We are with our option. This is code C will be your answer. Next is the date of settlement of foreign exchange transaction is referred to as. जिस डेट को हम ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन करने की सोचते हैं उस डेट को क्या बोला जाता है, वैल्यू डेट. ओके, ऑप्शन ए. देन हेजिंग इज यूज्ड बाय द कंपनीज टू. हेजिंग क्यों की जाती है, कंपनी क्यों हेजिंग करते हैं? दे डू बिकॉज टू डिक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, की जो वेरिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए. All right, then next, which of the following is not a type of foreign exchange exposure? बाकी सारे उसके types हैं. Balance sheet exposure, yes. Transaction, yes. Economic, yes. Tax exposure, no. ये foreign exposure का part नहीं है. So this is odd one out. Then which of the following is included in the international liquidity? क्या include होता है international liquidity में? Foreign exchange reserve अभी just हमने किया था, yes. Borrowing capacity of various countries, yes. Gold reserves, yes. So we will go with option A, B, C, both. ये आपके D में correct given है. Next, the method by which a firm may protect itself against the economic exposure से अगर firm को बचना है तो वो कैसे बच सकती है? By applying geographical diversification. Geographical diversification यूज करके एक जो फर्म है वो इकोनॉमिक एक्सपोजर को अडेप्ट कर सकती है, उससे बच सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अनहेज्ड रिसीवेबल्स और पेबल्स डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी एंड द सेटलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन हैज नॉट येट टेकन प्लेस. तो फर्म ने क्या किया है? फर्म हैज डन टू हैव अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर वहां पर हुआ है. ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज the potential for an increase or decrease in the parent's net worth का increase decrease होना and reported net income caused by change in the exchange rate की वजह से ऐसा हो रहा है. तो ये क्या चीज को दिखाता है? ट्रांसलेशन एक्सपोजर. ओके, ऑप्शन डी, ट्रांसलेशन एक्सपोजर. देन अंडर द करंट रेट मेथड जो है हमारा under the current rate method, when the management anticipates the appreciation of foreign currency, which of the following techniques will it use to enhance its position? So that is done by it may try to increase net exposed assets in that current country. Option A will be your answer. All right, then next, which of the following functions is performed by multilateral netting? कौन से फंक्शंस जो होते हैं दैट आर परफॉर्म्ड बाय द मल्टीलेटरल नेटिंग? सो दीज आर, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मूविंग फंड्स फ्रॉम वन करेंसी टू द अनदर कंट्री. ओके, करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क? कौन से रिस्क को हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहेंगे? अगर आपने मेरे साथ ये सेशन किया था, यू आर गोइंग टू आंसर इट वेरी इजीली. ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिक और ऑल ऑफ द अबव. So very easy, option D will be your answer, all of the above. Currency swap का मतलब क्या होता है? Currency swap is a method of, अगर हम देखें, that's the method of hedging against the foreign exchange risk को थोड़ा कम करना, that is your currency swap. Next, the semi-strong form of efficient markets hypothesis asserts that stock prices जो क्या होने चाहिए? Stock prices fully reflect all publicly available information. Right, students? Then
नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स द कोटाज आर डिनोमिनेटेड इन IMF? IMF में जो कोटाज होते हैं वो किस चीज़ में डिनोट किए जाते हैं? दे आर डिनोटेड थ्रू स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आपका कोटा SDR से डिसाइड होता है। किसी भी कंट्री का अगर हमें कोटा चेक करना है IMF में, दैट इज डिनोटेड बाय SDR। Understood? Moving ahead, there are 19 nations that are part of Eurozone. All of you know that. And जो EU member nations हैं, European Union member nations, are expected to meet some economic conditions that are set in the Maastricht Treaty in 1992. So those conditions को हम Maastricht Treaty की conditions को और किस नाम से जानते हैं? They are known as convergence criteria. कैसे हमें जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करना है? तो ऑप्शन सी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहीं पर भी आ जाए, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। याद रहेगा आप सबको। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव डन ऑल दीज प्रैक्टिस अलॉन्ग विद मी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।